अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद और एक और इंटरेस्टिंग सेशन और एक बहुत इंटरेस्टिंग और शदीद पढ़े लिखे गेस्ट के साथ आज आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे आज के जो गेस्ट हैं इनसे मैंने तो बहुत कुछ सीखना है और यकीनन आप लोग भी बहुत कुछ सीख के उठेंगे। जैसे कि आपको दूसरी विंडो में नजर आ रहे हैं डॉक्टर एजाज कुरैशी। इनके जब हम बात करते हैं तालीम की और तालीमी सिलसिले में इनकी जो खिदमात हैं तालीम के शोबे में, तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतना बड़ा सर आप काम कर रहे हैं। मैं ये तो अभी करंटली बता सकती हूँ कि जो है डॉक्टर एजाज कुरैशी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस वगैरह के ये किसी के डीन रह चुके हैं, किसी के रेक्टर रह चुके हैं, किसी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनसे हम उनकी तफसील बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा सेशन है वो एक बहुत इस वक्त जो करंट और कहते हैं उभरता हुआ एक इशू है वो उस पर है। और मैं बता भी देती हूँ कि वो क्या है। डॉक्टर साहब ने अभी एक किताब लिखी है, आप देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन। और ये डॉक्टर साहब ने किताब लिखी और इनकी जो को राइटर हैं डॉक्टर शाजिया कुरैशी, वो जो है शी इज प्रिंसिपल लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एंड शी इज अ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट। बात करते हैं डॉक्टर एजाज कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam, Professor Khadija. Thank you very much for giving me the opportunity to be your guest today. Really honored. Looking at the profile of your audience, lots of top intellectuals are your followers and fans. So I'm really honored to be with you this evening. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट सर, आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम ग्रेटफुल। सर थोड़ा सा मुख्तसरन आप जरा अपनी तालीम के बारे में बताएं और उसके बाद कहाँ कहाँ के जो है किस किस दश्त की सयाही की है, जरा उस पर बात तो हो जाए। Well, thank you so much. I started my life like an average Pakistani from Pakistan. Did my basic education from Faisalabad, then moved to Punjab University for 2 years undergraduate program BCom, and then in 1987 I moved from Pakistan to England for my further studies. Right. So joined Imperial College, then shifted from Imperial College to American University London. So that's where I did my MSc in Strategic Management and Information Systems. Very interesting part that I always tell to my friends and family is that it's not that I had the opportunity to study in the best institutions around the world, but the best part of my life is that I started my first job at the age of about 20-year-old, full-time at McDonald's, Hammersmith, London. So in the morning, I used to be in the university, and evening from 6 to 11, I was in the restaurant, McDonald's Hammersmith. So it is the McDonald's job that has been a cause of success to me. Interestingly, during my interview, my store manager was Marian. She was Scottish, wonderful Scottish lady. She asked me, do you know what you are going to do here in McDonald's? I said, I really do not know, because we do not have McDonald's in Pakistan. And in 80s, there was no concept of fast food in Pakistan, at least the American chains. So she said, well, let me ask you a few questions and then we will move forward. She said, tell me, can you cook food? I said, yes. And interestingly, Professor Khadija, this was my second day in London at that time. Right. September 19 was my first day, and September 20th, it was the day I went to school. Next to my seat was a gentleman from Sri Lanka, Mr. Kumara Singha, and he said, looks like you are new here. I said, yes. And he said, where are you from? I said, Pakistan. He said, oh, good, I am from Sri Lanka. And he introduced me, and then he asked me, do you have a job? I said, no, I do not have a job. And he said, do you want a job? I said, yes, I really need. Second day, he said, okay, after university, we will go to my store today, and I will introduce you with my manager. And this is how, from South Kensington, we took the bus and went all the way to Hammersmith. And the same day, I had my interview over there. So I got the job. So Marian asked me, do you know what you are going to do here? I said, I really do not know, but I'm willing to do anything.
She said, okay, can you cook food? I said, yes. She said, good. She said, okay, can you sweep the floor? I said, yes. And she said, okay, and can you wash the toilets? I said, yes, I can do that. And she said, can you sweep the street? I said, yes, I can do it. And she said, okay, let's get up and go, come out. And we went into Hammersmith High Street, and she handed me that small broom and basket, and she said, okay, can you do it? And I did. It was nice sunny day, and I enjoyed so much sun outside that I kept moving further. And then she sent somebody else to come back to the store. So so that was my test. And then she said, well, we also do lots of maintenance in the store. We also do lots of warehousing. And then if we have in the evening garbage truck coming up, then we put all the garbage bags in the garbage truck. So do you think you can do it? I said, I think I can do it. And she said, oh, congratulations, you got the job. So this is how I started. And at the interview, she said, finally, she said, Ijaz, if you can work 1 year with me, you will have a very successful life. Now, I was really surprised. I said, well, Marian said you're gonna sweep the street and wash the toilets and cook the food and everything. And now she's telling me that you're gonna have very successful life after doing all. I said, okay, let's see. So I really worked 1 year, and I enjoyed. And almost every 4 weeks, I used to get a pay rise, a little bit of pay rise, but she was giving me regularly because one reason was I was never late. Second, I was never reluctant to do anything. Whatever shift manager or store manager would ask, let's do it, and I will go and do it. So then 1 year later, I was in Richmond College at that time. World's number 2 retailer, which is now Tesco's, they came to our university for hiring, trainee management position. I asked my dean, I said, Professor, there is a hiring going on at Tesco's. So she said, hey, why don't you go and apply? I said, well, it is for British citizen and permanent residents and all those. And I'm not a permanent resident or citizen of this country or European Union. Said, Ijaz, there is nothing wrong by applying and trying. She said, what is that maximum they will say? What's the maximum? They will say, you don't qualify, so that's fine. So she said, but let's try. So I went there, I filled the application, I appeared in the written test. Within 2 hours, they told us, hey, you guys, about 10 students out of 30, they said, congratulations, you all are successful in the written test. Now come tomorrow for the interview. I said, okay. Next morning, we had interviews in the campus, and I was hired there as a training manager. I told my dean, I said, I am hired. She said, congratulations. Now just go and work. So they told us, they said, you guys will have evening shift. So the reason of joining was it was more money and big company. At McDonald's at that time, I guess we used to get £2 per hour, and Tesco was offering us $4.50 per hour. So then if you work Sunday, then it was double. If you work Saturday, it was time and half. So as a student, you need money. The more you have, the better it is, particularly for us, because we are not only paying our tuition fees over there, we have families back home. So if we could send a little bit to parents, that's a blessing for us. So I got the job in Tesco's, and I started working at Tesco Victoria store in central London. 2 weeks gone, and there was something that was bothering me, and that was that in their advertisement, they said European citizen, permanent resident, and I am Pakistani working on a work permit. So I went to my HR manager's office. I said, hey, Jim, can I speak to you for a second? He said, yes, come on. He said, I hope you are not going to tell me that you don't like Tesco and going back to McDonald's. I said, no, there is no such thing. What I'm going to share with you is, you know that I'm not a European resident, citizen of these countries, or a permanent resident in United Kingdom. He said, yes, I know that. Excuse me. And I said, Jim, then why did you hire me? He said, the reason to hire you was your job and experience at McDonald's. He said, whenever a kid comes from McDonald's, we never have to supervise him. He's multitasking. He will do anything.
without asking. And that's really that was our training in McDonald's, that if we see something need to be done, we will go and do it. Because I remember we were told that within 30 seconds we have to serve the customer. Okay. In the queue, and if there are more than 3 customers in the queue, we have to open a new cash register, and there must not be more than 3 customers in one queue. So open the new register. So this was the training. And so when once I worked at a cash register, so my cash register my queue was moving much faster compared to anybody. And then they requested me that during the Christmas time, I need to be on the cash register. So then I worked 4 years with Tesco's, had a wonderful time over there. Promoted, got very serious, quick promotions during my services over there. And this was the time I was already in England for over 6 years. So I decided in 1993 to move to US. So went to New York, attended summer school in Columbia, and met wonderful professors over there. And they asked me, what is that you want to do? I said, well, my interest is to study marketing or finance. One wonderful Indian professor, he advised me, Professor Dhruva Sen, he said, well, Ijaz, look, you are from subcontinent. And he said, finance is an American subject. Right. We can never be as good in finance as these local people because it is in their blood, expertise in finance. Number 2, he said, if you are talking about marketing, he said, again, they are the father of marketing. We can never be a good marketer or good in marketing. He said, my advice to you is go to California and work on computers or information system or technology. So you will have a much better life over there. I said, okay. Then the Indian professor gave me the contact of his cousin in Silicon Valley. I landed up in his home. Professor Raj was there to pick me up from airport, took me to his home, and I spent 2 days talking to him. And he said, well, you need to forget about marketing and finance and move to technology side. So this is how I ended up in MBA from John F. Kennedy University with specialization in e-commerce. And I was blessed to have a wonderful professor from India, Professor Raj, Professor Bhat Singh, Professor Jaspal, and wonderful sister and brothers from Indian part of subcontinent. So I had really wonderful time with them. So they were more of a family to me than friends, honestly speaking, because my weekends were with them. Anytime I feel like I need वो फ्रेश तवे की रोटी जो है वो खाने की दिल कर रहा है कि अब पिटा ब्रेड खा खा के तंग आ गए हैं, तो फिर उनको फोन करते थे कि जी हम आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हम तो वेट कर रहे हैं आपका, व्हाई डोंट यू कम. So this is the kind of love and respect I got from Indian friends over there. So sometimes I feel sad that how much anger and aggression we have here when we are back home, which is sad, unfortunately, because they are wonderful people. They're very beautiful people, very loving, very caring. And when we are here in these countries, things are quite different. And I hope things will get better. Just yesterday, there was a World Peace Summit that ended yesterday, 4 days. It was professors from Bangalore, Hyderabad. They started that initiative, and we ended up inviting 44 speakers from all over the world. So it was a great gathering, alhamdulillah. So the objective is let's start working on it. So politicians have their own role. Defense forces have their own role. Civil society has their own role. So exactly. I strongly believe now it is the time that intellectuals need to put their efforts. And until and unless we start changing the minds of our students in the classroom, nothing is going to change. So that's what I look into it. So so coming back to education, then I did my PhD, started with the world-class university from UC Berkeley, then shifted to a private university, Argosy University, San Francisco. Completed over there, worked at San Francisco State University, and visiting professor at many other universities.
Then in 2007, I ended up in Pakistan back after long stay overseas. It was more major. मेरे अक्सर दोस्त पूछते हैं friends कि what was the reason that you came back after such a long time in overseas. मैं कहता हूँ कि यार there is something in this land that force us to come back, and that is parents, and that is the love and respect of our family and friends. So this was the reason, and I'm happy, alhamdulillah. I have no regret that whatever I have, wherever I am, it is because of Pakistan. It is because of my professors. It is because of professors from United Kingdom, professors from United States. They work day and night with me to put me wherever I am today. Particularly Professor Raj, Professor Donna Sheffer from Virginia University. She's topmost scientist at the moment. Professor Mike Whitty from University of Michigan. His wife, Dr. Gail, Professor of Law. Dr. Bhat Singh from San Francisco, and so many other wonderful friends. So this is how life has been, and it is full of love. I do not know how 40, 50 years of life has gone, but this is how it is. But alhamdulillah, it has been very rewarding, very comforting, and I enjoyed teaching in Pakistan more than any other part of the world. It is because our students are really very humble, very down to earth, very innocent, honestly speaking. 24 साल की एज होगी और बड़े सिंपल होंगे बेचारे. वो क्लास में बैठ के वो सेकंड ग्रेडर की तरह हरकतें कर रहे होंगे, कभी पेपर उठा के इधर फेंकेंगे, कभी चाक उठा के इधर फेंकेंगे. तो आई सी के उन्होंने लाइफ में देखा कुछ नहीं अभी तक ना. अब ये चीजें होती हैं बच्चे को थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में करवाई जाती हैं, और उनका ये सारे का सारा जो है ना, आपने उनको बाहर निकालना होता है एट द वेरी यंग एज. तो हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में हम प्रोवाइड ही नहीं करते. स्केट बोर्डिंग की फैसिलिटी बच्चे को नहीं है, म्यूजिक की फैसिलिटीज बच्चे को नहीं है, स्विमिंग की फैसिलिटीज बच्चों को नहीं है. तो वो फिर जब उनकी एक एनर्जी होगी, आप देखें कि 18 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड, फुल ऑफ एनर्जी. अब उनको एक्टिविटीज चाहिए, यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज है कोई, तो वो सारे का सारा वो फिर जो है वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो अनफॉर्चुनेटली होता है. तो माई सेल्फ एज अ टीचर I take responsibility, unfortunately, that I couldn't do as much in the universities wherever I have been vice chancellor or rector, because constraint on resources, या फिर वो जो पैसा कमा रहे होते हैं उनमें भी एक चीपनेस होती है कि पैसा ना ही खर्चना पड़े तो अच्छी बात है कि अपनी जेबों में डालते जाओ. तो ये एक माइंड सेट है. ओवरऑल इट्स नॉट जस्ट फ्यू, बिग मेजोरिटी ऑफ दैट. अब मैं लाहौर में हूँ इस्लामाबाद के बाद, तो मैं देखता हूँ कि सर गंगाराम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, कितनी कंट्रीब्यूशन है नॉन मुस्लिम का इस रीजन में. लेकिन आपको आई डू नॉट नो कि व्हाट वाज द रीजन. मुस्लिम्स वर वेल ऑफ इन, but you do not see these kind of charitable institutions, at least in Lahore region. So I hope now the rich at the moment would do something so that they are always remembered, like Sir Gangaram or King Edward or Gulab Devi. So I mean, this is what I feel. Thank you. Great, sir. और सर आप अपनी काफी जगह पे, काफी यूनिवर्सिटीज में आप जो हैं रेक्टर भी रहे हैं, और उसका भी थोड़ा सा मुख्तसर बताएं कि किन किन यूनिवर्सिटीज में आप वाइस चांसलर और रेक्टर रहे हैं. जी, मैं आई वाज द फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट. Beautiful city in Pakistan, very dynamic, very advanced, and very progressive and forward-thinking city. The only city that I always enjoyed over there, and kids are wonderful. Students are just, I have not seen students of like Sialkot anywhere. I mean, every single kid you sit with, they will talk about business. अच्छा. Every single business mindedness. मेरे पास एक बच्चा होता था, बीबीए कर रहा था, और मैंने उससे कहा कि यार आपको क्लास में नींद आती है, तो व्हाट्स द रीजन. उसने कहा सर मैं रात को अपना बिजनेस करता हूँ, चूंकि मेरा बिजनेस यूएस के साथ है तो वो 12 आवर्स का डिफरेंस है, तो मैं फिर रात को इसलिए सो नहीं सकता ज्यादा, तो मैं फिर उसी तरह उठ के आ जाता हूँ इधर, तो फिर इसलिए मुझे क्लास. तो मैंने पूछा कि व्हाट इज द बिजनेस. कहता सर मैं ये सॉकर बॉल्स जो है वो तैयार करवाता हूँ और फिर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ. तो कहता है कि लास्ट ईयर का मेरा
जो बिजनेस था वो $150,000 का था, और इस साल मेरा प्लान है कि मैं इसको $250,000 तक लेके जाऊं हर सूट में. This is just one example, and there are many such examples. कोई बच्चा 50,000 का बिजनेस कर रहा होगा, कोई 20,000 का बिजनेस कर रहा होगा. I'm talking about dollars, US dollars. तो मीन दिस इज जस्ट नॉर्मल ओवर देयर इन सियालकोट. तो व्हाट इज नीडेड, अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करके इंक्यूबेशन सेंटर्स टाइप बना दें वहां सियालकोट में, जैसे गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में है, तो आई एम श्योर कराची में भी है. तो उस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स अगर बना दें. सियालकोट चैम्बर इज वेरी यूनिक चैम्बर. They are doing a wonderful job. Current president is Mr. Kassab Briar. He is also the chairman of my university, chairman, board of governors of Talent Institute of Higher Studies as well. So very dynamic gentleman, US educated. He's MBA from there. He's very much committed to do as much as he can. And as a volunteer, he's just jumping into everything. Right. And I think by the time he completes his tenure for 1 year, things would be much different for the economic community, economic environment. Right. So that was my experience in Sialkot. Then I worked around about 1 year in Lahore as a NCBA. It's a very small school. It's a DAI, which is, there are two types of charters in Pakistan. One is university. Second is DAI, Degree Awarding Institution. This is more like a college. So they have limitations on programs. Once you have the limitation on programs, for sure you have limitation on resources as well. So many a time, many small institutions cannot grow. So right. Zabist was really an exceptional example, because Professor Javed Lughari, when he was president, he was very dynamic. So I remember seeing the news of Zabist in CNN at that time. So CNN has given coverage to Zabist. So it was just because of his leadership that he moved it so much, and very innovative academic programs were launched by Zabist at that time, and I'm sure they are still doing it. But that was a time that Zabist was in topmost business school in Asia, actually. I want to add something. Zabist में, like, I have this honor के Dr. Javed Lughari की leadership में, मैं भी Zabist में कराची कैंपस में पढ़ाती थी, and no doubt जो भी आपने बात की है कि डॉक्टर जावेद लगारी जिस तरीके के वो इनोवेटिव इंसान थे और जिस तरीके का उनका एक डिसिप्लिन था, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कहती हूँ मुझे उनसे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत इंसान जो है ना, एक तो होता है प्रोफेशनल, तो होता है प्रोफेशनल तो वो बहुत थे, लेकिन वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं. Wonderful professor, absolutely. I mean, I met him in Islamabad once, and he was a senator at that time. I saw him walking with his the school bag type backpack, and just walking on the street. And one friend of mine told me he's a senator. I said, "Excuse me?" He said he's a Pakistani senator. And then I went close to him, shake hand with him, and then he introduced himself. So then I read his profile, academic profile, that a wonderful professor. He was a dean at a very topmost university in United States, dean of engineering. So exceptional academic career he had over there. So again, he came back, I guess, for the love of Pakistan, like many of us do. And, but he had a tough time in Pakistan, unfortunately, what we all know. और इसके बाद सर फिर आप लाहौर यूनिवर्सिटी में भी आप रेक्टर रहे हैं? जी, मैं प्रोफेसर, I was Dean Faculty of Management Sciences for 4 years over there. Okay. Again, I had a wonderful experience over there. It's a very dynamic, fastest growing university of Pakistan. I think at this stage they have probably 57,000 full-time students. They operate within Punjab. So they have University of Lahore in Lahore. It has 4 campuses. Then now the Islamabad campus has become an independent university, Ibadat International University. So that's again our topmost university at the moment in Punjab, doing wonderful job, and lots of foreign students
the largest foreign student body at the moment, at least when I was there, it was in University of Lahore, over 500 foreign students, and they are Okay. giving very generous scholarships to students, Great, so mashallah. promoting internationalization. So, sir, tell me something about the Talent Institute of Higher Studies. Okay, उसको भी so किस this तरह is अपने आप very what I was thinking, that I have worked with so many universities, colleges, I mean, starting from NUST and moving everywhere. The longest I have worked in Pakistan is the University of Lahore, where 4 years I worked, and I moved only because I got the opportunity to serve as a vice chancellor. Otherwise, I would have probably stayed over there. So then, I mean, having worked with so many institutions, I was always feeling that things are missing that I want to do and I'm not able to do it. Somewhere it is the financial constraint in the organization. Somewhere it is that वो जो मालिकान हैं उनको ही नहीं समझ आती कि आप क्या कर रहे हैं. आप उनसे यूएस की बात करते हैं और वो आपसे वो जटमाला की बात कर रहे होते हैं कि आप ईस्ट टू वेस्ट गैप इन थिंकिंग के स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर सकते किसी चीज को. बिल्कुल. तो फिर मैंने कहा कि वी नीड एन इंस्टीट्यूशन जहां हम ये करें कि हर बच्चा या तो जॉब करे राइट अवे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन, या फिर वो बिजनेस करे. तो अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन गवाल मंडी, वो पुराना शहर जिसे है उसके अंदर है. ये पर्पस बिल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, बन रहा है अभी, रेडी हो जाएंगी चीजें बहुत जल्द. तो हम फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ, एक तो हम उसमें पियर्सन के HND जो है अप्लाइड साइड जो है वो 2 इयर्स की डिग्री बच्चे हमारे पास करेंगे, और 1 साल के लिए हम उनको यूके भेजेंगे. फाइनल ईयर वो अपना यूके कंप्लीट करेंगे जाके. तो 11 डिग्रीज हैं. पाकिस्तान में अगर वो करते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन उनको कंसिडर करता है एज ADP, एसोसिएट डिग्री, विच इज 2 इयर्स. तो उसका बच्चे को फायदा कोई नहीं होगा. हमारे पास जो बच्चे पढ़ेंगे वो 2 साल हमारे पास पढ़ेंगे, फिर 3rd ईयर दे विल गो टू यूके. तो वी विल प्लेस देम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ओवर देयर. They will complete their 1 year over there. They will come back home with undergraduate degree from British universities. Great. तो ब्यूटी इसकी, हाँ, तो इसकी ब्यूटी ये है कि since it is applied side, hands on है, let's say फैशन एंड डिजाइन है. अब जो भी बच्चे करेंगे वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं करेंगे, वो अटैच हो जाएंगे किसी फैशन डिजाइनर के साथ. राइट. और वो जिस एरिया में हम है ना, इट इज फुल ऑफ कल्चर, बिजनेस, यू नेम इट. मीन शाला मार्केट, यू वुड बी सरप्राइज नो कि बिलियंस का बिजनेस होता है डेली बेसिस पे. और हमारे लोग कभी उसको एक्सप्लोर नहीं करते. आई डाउट कि कोई भी बिजनेस स्कूल कभी अपने बच्चों को उधर गवाल मंडी में भेजता है या शाह आलम मार्केट में भेजता है जहां बिलियंस का बिजनेस हो रहा है. हम उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहे होते हैं, शिकागो मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहे होते हैं, मिलान की इंडस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं, फ्रेंच डिजाइनर्स के बारे में बता रहे होते हैं. रहते हम इस कंट्री में, हम उनको जो जिस चीज पे ये कंट्री बेस कर रहा है वो कभी नहीं दिखाते. तो मैं सोच अच्छा, वो सारा रिटेल का बिजनेस, होलसेल का बिजनेस है उधर. अब हम ये चाह रहे हैं कि एक तो लोकल बिजनेसेस की हेल्प करें कि वो एम कॉमर्स और ई कॉमर्स की तरफ आए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो ज्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं चलेंगे. फॉरेन की कंपनीज, ईबे जो है, अमेज़न जो है, ये सारे के सारे ग्रेजुअली आएंगे इधर और मार्केट को स्वीप करके ले जाएंगे. तो फिर देन इट इज गोना बी टू लेट. तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज शामिल है कि एक तो लोकल बिजनेसेस को एजुकेट करना कि लेट्स मूव टू ऑनलाइन साइड, मूव टू एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स साइड, और बच्चों को उन बिजनेसेस में देन इन्वॉल्व करना फर्स्ट डे से ही, ताकि उनको वो जॉब की तरफ ना जाएं. लेट्स हैव देयर ओन बिजनेस, और बिग अपॉर्चुनिटीज हैं. मैंने एक चीज पाकिस्तान में काम करके देखी कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, बिजनेसमैन, दे रियली हैव अ वेरी बिग हार्ट. वो चीपनेस की तरफ नहीं जाते. हम लोगों की परसेप्शन ये है कि यार ये पैसा नहीं खर्चते, ये दबा के रखते हैं पैसे. और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कि दे रियली स्पेंड मनी. अगर कोई उनको ये प्रूव कर दे कि यस कि वो एक रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, देन स्काई इज द लिमिट. मैंने बहुत सी कंपनीज देखी हैं
लाहौर में और सियालकोट में भी, कि वो बच्चों को ले लेते हैं, जॉब है या नहीं है, उनके अपने बिजनेस स्लो भी हैं, वो कहेंगे चलें यार 10,000 इस बच्चे को देते जाओ, 15,000 इंटर्नशिप का देते जाओ, वो ठीक ठीक कुछ तो करेगा ना हमारे पास आगे। बिल्कुल। और बच्चों ने बड़े अच्छे काम किए ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये इंटर्नशिप पे जाते हैं। तो मैं तो, यू वुड बी सरप्राइज नो, जब मैं सियालकोट में था या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था, मैं कभी बच्चों को इंटर्नशिप के लिए नहीं भेजता था जब तक 2 वीक की हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे देते थे अपने पास। और मेरे पास ट्रेनिंग क्या होती थी, मैं उनको स्टार्ट करवाता था टॉयलेट को वॉश करने से। हमारे बच्चों को जो जो शर्म आती है, इनको झाड़ू मारने से शर्म आती है, इनको टॉयलेट वॉश करने से शर्म आती है, इनको डब्बे उठा के मूव करने से शर्म आती है। तो ये चीजें जो होती हैं, एक्चुअल कंपनीज को तो ये सब कुछ चाहिए होता है। कंपनी को सीईओ नहीं चाहिए होता, सीईओ उनके पास है ऑलरेडी एंड ही इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। Senior management is there and they are going to be there. All they राइट। need is the people at the entry level. अब एंट्री लेवल का काम ये होता है कि अगर गेस्ट आ गए हैं, उसकी तरफ देख कर ना रहे, उठ के जाए, उससे पूछे सर हाउ कैन आई हेल्प यू, उनको बैठाए ला के, उनको जल्दी से पानी का ग्लास दे ला के, लेट्स मेक देम फील कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट। और यू वुड बी सरप्राइज कि जिस बच्चे को भी हमने आज तक भेजा इंटर्नशिप के लिए, दे ऑलवेज गॉट द जॉब। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने कहा कि भाई आप 2 महीने पूरे हो गए, अब आप जाएं। कि जहां भी जिन बच्चों, उसकी वजह यह कि हम बच्चों को बता के भेजते हैं कि यू हैव टू डू एवरीथिंग। मैं कहता हूं कि अगर उनकी डिलीवरी आ गई है, ट्रक में डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, आप जाएं और हेल्प करें, उठाएं उन्हें। आप देखते हैं कि कोई गार्बेज पड़ी हुई है, ये शॉपिंग बैग स्कैटर्ड हैं इन द फ्लोर इन द ऑफिस और आउटसाइड, जाएं उठा के पिक करके उनको बिन में डाल। एक कल्चर क्रिएट करें ताकि उनको नजर आए कि यू आर पार्ट ऑफ अस। बिल्कुल। सर आपसे बहुत जबरदस्त, आपसे तो ये बातें सुनने को मिल रही है। इनफैक्ट मैंने कहा था ना कि आज का सेशन जो है मैंने सीखने के लिए किया है, और सो ग्रेटफुल। दिल तो चाह रहा है कि वाकई मतलब ये इतनी कीमती और बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं कि अगर वाकई हमारे ये लोग इन पे अमल करना शुरू करें तो वाकई कॉल आपके कि सीईओ तो उनके पास है, उनको सीईओ नहीं चाहिए, उनको काम करने वाला चाहिए। अच्छा सर, अब बात करते हैं हम आपकी बुक की, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन। सर बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है आजकल, और मैंने तो देखा है कि अल्लाह माफ करे, मतलब कुछ मेरे अपने जानने वालों के साथ ये हुआ है कि किस तरीके से उनकी जो है बाकायदा उनकी तहरीरें कुछ और लोग अपने नाम से जो है वो शेयर कर रहे हैं, उनको कोई शर्म भी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि आज फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और प्लीज। उनसे, हाँ मैं उनसे, जाहिर सी बात है मुझे, मैंने कहा ना आज मैंने सीखना है। सर सबसे पहले तो बताएं कि इंटेलेक्चुअल राइट्स होते क्या हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं? प्रोफेसर ये देखें, जो प्रॉपर्टी जो है, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो हम घर को प्रॉपर्टी कहते हैं, हम गाड़ी को कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मोटरसाइकिल किसी की है तो मेरी प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है मेरी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और जब हम बात करते हैं इंटेलेक्ट्स की, तो वो जो आपकी एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की वजह से कोई भी इन्वेंशन हुई है, जो कुछ आपने प्रेजेंट किया है ग्लोबल कम्युनिटी को या लोकल कम्युनिटी को, वो आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो राइट्स इसको इसलिए कहते हैं कि स्टेट इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं उनकी एफर्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, और उनकी एफर्ट्स को प्रोटेक्ट जो करती है तो स्टेट्स उनको एक स्पेसिफिक राइट्स दे देती है, जो फिर सिर्फ उन्हीं का राइट होता है, किसी और का राइट वो नहीं होता। तो इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव बीन वेरी काइंड कि आपने पब्लिक को हमारी ये बुक दिखाई, थैंक यू सो मच। तो ये अभी पब्लिश हुई है रिसेंटली। अब ये एक बुक है इंटेलेक्चुअल। अब अच्छा, तो ये इसके जो अब एक कॉपीराइट्स हैं, चूंकि ये लिटरेरी वर्क है तो लिटरेरी वर्क का कॉपीराइट्स होता है। अच्छा, अब इसका, अब हमने लिखी बुक, इस पे हमें तकरीबन 6 साल लगे कि हम एक अपने पर्सपेक्टिव से करना चाहते थे, हम रश नहीं करना चाहते थे। फिर हमने ये 2 टारगेट ऑडियंस हैं हमारे, एक तो स्कूलों में बच्चे, जो बिजनेस स्कूल में बच्चे हैं, जो कंप्यूटर साइंस में हैं, जो फैशन एंड डिजाइन में हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो
उन सब बच्चों की जो साइंसेस में है, नेचुरल साइंसेस में, तो उन सब बच्चों के लिए है कि वो इनको लेट्स गो थ्रू इट एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्क. और दूसरा इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारे बहुत से लॉयर्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रैक्टिस करते हैं आईपी राइट्स में, उनके लिए है कि बहुत सी चीजें उनको नहीं क्लियरली मिलती, तो हमने उनके लिए भी लिखी हैं. अब बहुत से स्कूल हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल है, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया अपने एलएलएम के लिए. हालांकि हमने तो अंडर ग्रेजुएट के लिए लिखी थी, तो एलएलएम में भी ये एक्सेप्ट हो गई एज ए कोर्स की बुक. फिर बहुत सी और यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इसको कर लिया, और बिजनेस स्कूल्स में ये अभी उन्होंने एज ए रिक्वायर्ड टेक्स्ट इसको लेना शुरू कर दिया. क्योंकि ये लिखी गई, आपने देखा होगा हर चैप्टर के एंड पे हमने एक्सरसाइजेज जो दी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, एमसीक्यूज दिए हैं. अच्छा, और इंटरेस्टिंगली हमने किसी एमसीक्यूज की नहीं दी है, किसी को भी ना आंसर की है उसकी. हमने कहा खुद पढ़े. हमने ये जरूर कहा कि जो जहां स्टक हो वो मुझे कॉल कर ले, मुझे ईमेल कर दे, आई विल बी टॉकिंग टू देम. और वेरी सून इंशाल्लाह हम इसका ऑनलाइन वर्जन भी एक कर देंगे, जिसपे इंस्ट्रक्टर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स अवेलेबल होंगे इंस्ट्रक्टर्स को, और बाकी इंस्ट्रक्टर के रिसोर्सेज क्लासरूम्स के लिए वो अवेलेबल होंगे. तो वही रिसोर्सेज फिर कंसल्टेंट्स जो आईपी राइट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल होंगे, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज कर सकें. ऑब्जेक्टिव ये है कि वी आर as a nation, honestly speaking, many of my friends will get angry with me that what I'm saying. We do not respect the rights of others. ऐसा ही वो कोई भी rights हो, legal rights हो, हम as a nation हम respect नहीं करते. Pedestrian, US में कहा जाता है pedestrians has the right of way, और हम pedestrian जा रहा होता शू करके उसके आगे से गाड़ी लेके चले जाते हैं. वो बेचारी औरत होती है बच्चे के साथ, कोई ज़ईफ औरत है, कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, यंग फेलोज हैं, बच्चे बेचारे देख रहे होते हैं कि कब ये गाड़ियां खत्म होंगी और हम सड़क क्रॉस करें. मीन सो अनफॉर्चुनेट कि राइट ऑफ वे जो है पेडेस्ट्रियन को होता है, और यहाँ फोर्सफुली हर एक से छीना जाता है राइट जो है. तो यही नहीं है, रेड लाइट पे आप देख रहे हैं कल्चर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. इट्स वेरी सैड. लाहौर में तो काफी टाइट हो गया, चूंकि एक तो इन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए जगह जगह, वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स घर में आ जाती हैं मेल में अब, और दूसरा पुलिस इन्फोर्समेंट जो है वो काफी टफ है. तो उससे काफी चीजें बेहतर हैं बिग सिटीज में, पर्टिकुलरली लाहौर, आई नो दैट. तो कमिंग बैक टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये वो राइट्स हैं जो कि किसी की इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स की वजह से स्टेट उसको देती है, और वो फिर एक टाइम फ्रेम होता है जिसके लिए देती है. वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होते. लेट्स से अगर आप कॉपी राइट्स की बात करती हैं, अच्छा पहले मैं बता दूं कि कॉपी राइट्स है क्या. लिटरेरी वर्क, जो भी लिटरेरी वर्क है वो उसके कॉपी राइट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ये लिटरेरी वर्क है, हमने लिखा इसको, तो वो उसके कॉपी राइट्स हैं. परफॉर्मेंसेज हैं, उसके कॉपी राइट्स हैं. प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, उसके कॉपी राइट्स हैं. आपके सिटी में एक वंडरफुल आर्टिस्ट थे मोइन अख्तर, बिल्कुल, और प्रोफेसर मसूद अनवर मकसूद, वो उनके साथ उनकी परफॉर्मेंसेस जितनी भी थी तो वो प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट्स हैं. अब कोई और उठ के अगर उसी तरह की परफॉर्मेंसेस की कॉपी करना शुरू करके और पैसे कमाने शुरू कर दें, तो ये फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर कॉपीराइट्स है. अच्छा. अगर आपने कोई प्ले लिखा है, आपने कोई पोइट्री की है, तो अब आपके उसके यूनिक राइट्स हैं आपके पास. अब होता क्या है पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो पाकिस्तान में एक ऑफिस उसको कहते हैं आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस. ये हर बिग सिटीज में उनके ऑफिस हैं. उनका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये बुक लिखी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, हम जाएं आईपीओ ऑफिस, और आईपीओ ऑफिस जाके एक फॉर्म लें और वो फॉर्म फिल करके उनको दे दें. थोड़ी सी फी है, इट गोज फ्रॉम 2000 to 6000 8000 मैक्सिमम. अच्छा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है. लेकिन हमारे यहाँ मेजोरिटी जो है वो बिल्कुल इस तरफ नहीं जाती. काम कर लेंगे, अच्छा बड़ा अच्छा कर लेंगे, लेकिन वो फिर उसकी तरफ नहीं जाते. अब एक उसकी रीजन ये है कि कल्चर नहीं है. नंबर 2, वो जो एक लिटरेरी वर्क
कर रहे होते हैं, यूएस में ऐसे होता है कि पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. लेट्स से कि मैं अगर कोई पेपर लिखता हूँ वहाँ या कोई मैंने रिसर्च की है, तो मेरी यूनिवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी. राइट. और यूनिवर्सिटी कहेगी कि ओके, नाउ इफ यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम दिस इन्वेंशन, then you will get the part of your royalties. For example, if let's say at the end of the year there was a 10,000 that came to university in royalties, यूनिवर्सिटी उसमें से 2,000 मुझे दे देगी, 8,000 यूनिवर्सिटी का अपने एक्सपेंसेस को कवर करने का. तो एक मैकेनिज्म है वहाँ ऑथर्स को, रिसर्चर्स को अप्रिशिएट करने का. हमारे यहाँ वो चीजें लेक करती हैं अभी अनफॉर्चुनेटली. राइट. अच्छा सर, दूसरा मेरा एक सवाल है कि प्लीज, what are the different types of intellectual property rights? प्रोफेसर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस कॉपी राइट्स हैं, बिल्कुल. लिटरेरी वर्क, परफॉर्मेंसेस. अच्छा, सॉफ्टवेयर कोड जो बच्चे लिखते हैं उसके भी कॉपी राइट्स होते हैं, वो भी रजिस्टर्ड एज ए लिटरेरी वर्क, सॉफ्टवेयर कोड भी. और पाकिस्तान में इसकी इन्फ्रिंचमेंट के सीरियस इश्यूज हैं. इन्फ्रिंचमेंट टेक्निकल वर्ड है. कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम वायोलेशन को इन्फ्रिंचमेंट कहते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंचमेंट. राइट. तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एक कोई जानने वाले थे, उनका वर्क काम किसी ने उठा लिया और पब्लिश कर लिया. अनफॉर्चुनेटली these things happen in third world. It's not only Pakistan, many other countries of the world as well. Third subcontinent is famous for that. African countries are famous for that, unfortunately. उसकी एक रीजन ये है कि हमने शुरू से इन चीजों को प्रमोट नहीं किया. हम शुरू से बच्चों को वो रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते इन चीजों की, कि दूसरे के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना. तो ये उसकी एक बिग रीजन. तो coming back to copyrights, other types are patents. अच्छा, पेटेंट्स जो है डिजाइन्स और प्रोसेसेस के लिए आपको पेटेंट राइट आईपी ऑफिस से मिल जाते हैं. फिर और टाइप्स जो है ट्रेडमार्क्स हैं, ट्रेड ड्रेस हैं, लाइसेंसिंग है. और एक कॉपीराइट्स में आता है, उसे कहते हैं डेरिवेटिव वर्क. डेरिवेटिव वर्क राइट्स होता है कि लेट्स से हमने ये बुक लिखी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे. अब देयर आर सम अदर एरियाज दैट वी कैन एक्सप्लोर रिलेटेड टू विद इन द डोमेन ऑफ दिस. राइट. अब लॉ हमें ऑटोमेटिकली वो राइट्स देता है कि डेरिवेटिव वर्क राइट्स जो हैं वो इट इज विद अस. हमने अप्लाई भी नहीं किया उसका, लेकिन एक लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि वी आर द इन्वेंटर ऑफ दिस. अब फर्दर इस डोमेन में अगर काम होगा तो हम करेंगे उसमें, और उसका रिवार्ड हमें मिलेगा. इसकी वेरी गुड एग्जांपल है अब, और बिगेस्ट एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपीराइट्स इज द बुक read by very big majority of individuals on this planet is Harry Potter. Right, Harry Potter. J.K. Rowling, Harry Potter. J.K. Rowling वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी स्कॉटलैंड में. Right. अब प्राइमरी स्कूल टीचर कितने पैसे कमाते होंगे? Everybody knows, whether वो स्कॉटलैंड हो या पाकिस्तान हो या स्टेट्स हो, तो बहुत लिमिटेड इनकम होती है. But it was always in her mind that she has to come up with this kind of writing. When she came up, तो मिशिगन में एक लाइब्रेरियन थे, उन्होंने उस पे she remained unsuccessful for quite a long time. She only got the boost in her professionalism when Disney picked this up as a book and for their literary work. अच्छा, तो वो लाइब्रेरियन जो थे वो केस सिर्फ इस वजह से हार गए कि कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप बहुत अरसे से सोच रहे थे तो आपने क्या किया इस पे. क्या जी मैं सोच रहा था. तो कोर्ट ने कहा कि जी आपकी प्रोटेक्शन जो होती है वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया होती है, सिर्फ आइडिया की नहीं होती. अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो पिछले 20 साल से सोच रहा था कि एक ऐसा रॉकेट बनाऊं जो जहां मर्जी चले जाए वर्ल्ड में, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया कोई नहीं है, तो देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ दैट. तो प्रोटेक्शन इज ऑलवेज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, कि अगर आपका आइडिया एक्सप्रेस हो गया, विजिबल है, नजर आ रहा है किसी फॉर्म में, देन देयर इज अ प्रोटेक्शन, अदरवाइज देयर इज नो प्रोटेक्शन.
राइट। تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ٹریڈ مارک ٹریڈ ڈریس کو کی انفرنچمنٹ ہوتی ہے. فار بالکل. ایگزامپل میکڈونلڈ پاکستان میں بہت فیمس ہے, تو ان کی ہوں. گولڈن آرچ ایم جو ہے, لوگ جو ہے اس کو کسی نہ کسی شیپ میں پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ میکڈونلڈ ہے. یا ہوں. کے ایف سی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اے ایف سی لکھ لے گا, کوئی ایف ایف سی لکھ لے گا, کوئی کسی طریقے سے, اور کلر اسکیم جو ہے وہ وہی دیں گے کہ فرسٹ ٹائم دیکھنے والے کو ایسے لگے گا یہ کے ایف سی ہے. تو یہ بالکل. ایک دین ٹریڈ مارک ٹریڈ ڈریس انفرنچمنٹ میں آ جاتی ہے. ہوں. تو دیر از اے پینلٹی فرام اسٹیٹ بیسیکلی فار آل اچھا. دیٹ if someone is doing that. Now big companies جو ہوتی ہیں ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ they can manage easily. For example, Coca-Cola, global company, global organization, we will see probably no infringement of their patents or IP rights. لیکن اسمال کمپنیز جو ہوگی ان کو بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسمال کمپنیز کے پاس وہ ایک لائرس کی ٹیم نہیں ہوتی, یا پھر اسمال انڈیویجولز جو ہوتے ہیں, مین 1 or 2 انڈیویجولز, ان کے پاس وہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اس کو کورٹ میں لے جائیں. لیگل سسٹم از ایکسپینسو ان پاکستان انفارچونیٹلی, کہ اگر کسی کے کاپی رائٹس یا ٹریڈ مارکس یا ٹریڈ ڈریس انفرنچمنٹ ہوئی ہے اسمال بزنس مین کی, تو اٹ از ویری ایکسپینسو کہ وہ لائر کو ہائر کرے, کورٹ میں جائے, پھر لیگل سسٹم کیپ ایکسٹینڈنگ. تو اس وجہ سے پھر لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں جاتے. اور یہ ایک بگ چیلنج ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کے جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا, اور میں نے اور بھی کئی کیسز دیکھے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی وہ کسی طرح کوئی بک اٹھا لیتے ہیں, کسی کی لکھی کسی نے ہوتی ہے, اس میں سے 75% ورک وہ اٹھا کے لے جائیں کہ جا کے پبلش کروا لیں. تو یہ ایک ایشو ہے, اور آئی ہوپ تھنگس ول گیٹ بیٹر انشاءاللہ. پیپل ول ریئلائز ایکسکیوز می کہ ایز اے مسلم یہ نمازیں پڑھنے سے, روزے رکھنے سے مسلمانی نہیں کمپلیٹ ہوتی. تو دیر آر مور تھنگس ٹو ڈو, کہ پہلے حقوق العباد کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹیکساس میں ایک دفعہ گیا, ایک میری ویری کلوز فرینڈ جینیفر ٹیکساس میں تھی, تو اس نے مجھے بڑی اچھی بات ہے, اس نے کہا یو نو اجاز, آئی لو یور ریلیجن ناٹ بیکاز اٹ از اے ریلیجن, بیکاز اٹ از اے وے آف لائف. کہتی کہ بالکل. ہر چیز کا ایک طریقہ بتا دیا, بڑوں کے رائٹس بتا دیے, بچوں کے رائٹس بتا دیے, کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا, گھر میں آنے کا طریقہ بتا دیا, گھر سے جانے کا, وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا, بیمار کو لک آفٹر کرنے. کہتی اٹس اے وے آف لائف. کہتی کہ دوسری چیز اس نے بتائی, کہتی کہ ہمارے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کہا کرتے تھے کہ بھائی ایکسکیوز می, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے نا, بس اس کو سمجھ لو, لائف بڑی ایزی ہو جائے گی. اور کہتی کہ ہم امریکنس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور ہماری لائف بیسٹ ہو گئی. اور وہ حدیث ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. بالکل. اب دیکھیں کتنی بڑی بات. کہتی کہ بس صرف اور صرف اس کو دیکھ لو, اس کو اڈاپٹ کر لو اپنے ڈیلی لائف میں, کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے لائف میں, جب بھی ہو جہاں بھی ہو, تو لائف از ویری ایزی. اور انہوں نے دیکھیں ان کے لائف سٹائل میں آپ کو یہ نظر آئے گا. بالکل. ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, کوئی ضعیف ہے, ان سے کارٹ نہیں کھینچی جا رہی, دوسرے بندے آ کے پوچھ لے کہ میم کین آئی ہیلپ یو ود سم تھنگ. کوئی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایلڈرلی جو ہیں ان کو پہلے جانے دیں گے, بچوں کو پہلے جانے دیں گے, پھر وہ خود جائیں گے. اگر سیٹ نہیں ہے بس میں تو دے ول اسٹیپ بیک اور نیکسٹ کا ویٹ کریں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا, وی نیڈ ٹو ریئلی اڈاپٹ اٹ آنیسٹلی اینڈ سنسیئرلی. پھر لائف جو ہے وہ ایک ایزی اور ہیون بن جاتی ہے خود کو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا بتایا کہ جو پبلش والی چیزیں, سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی کریٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں, اور کچھ میں کہتی ہوں ڈھیٹ کہہ لیں یا ان ایتھیکل قسم کے لوگ وہی آ کے اپنے نام سے بڑے کانفیڈنٹلی وہ شیئر کر لیتے ہیں. چلے پبلش والی چیز تو ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتا جتنی جلدی وہ وائرل ہوتی ہے, وہی ایک شخص کے جس میں اس کی پتہ نہیں کتنے ایموشنز ہیں, اس جو اس نے لکھا ہے اسکرپٹ, کتنی میموریز اس ایک اسکرپٹ سے وابستہ ہیں, آپ نے اٹھا کے اس کو اپنے نام سے جو ہے شیئر بھی کر دیا, اور لوگوں سے آپ داد و تحسین کے ڈونگرے بھی وصول کریں. اب اس میں انسان کیا کرے؟
अब इसमें देखें इन्फ्रिंचमेंट तो है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल राइट्स किसी और के पास हैं, किसी ने ऐसे ही उसको उठाया, कॉपी किया और पेस्ट करके अपने पेज पे लगा दिया, दिस कॉपीराइट इन्फ्रिंचमेंट। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, मीन अदर देन कि वो दे आर कंसिडर्ड एज सोशली डिसग्रेसफुल फेलोज, कि और तो इसमें कोई और नहीं है। और इंसानों में जब गिल्ट और कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है तो देयर इज नथिंग वन कैन डू ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम लोग कहते हैं कि लॉ बड़े वीक हैं पाकिस्तान में, कई लोग तो बड़ी एक्सट्रीम तक जाते हैं कि ये हमारी अदालतें काम नहीं करती हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत से जजेस को जानता हूँ, वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन सर्विंग जो है, टॉप मोस्ट भी हैं उनमें, दे आर वेरी ऑनेस्ट, रात को 12 बजे तक बैठे हुए अपना काम कर रहे होते हैं। मैंने कई केसेस में कोर्ट में जाके देखा, ये सिर्फ एक जज ही होता है जो पढ़ के आया होता है प्लेंटिफ की केस को भी डिफेंडेंट के केस को, बाकी दोनों वो काउंसल्स उनकी जो होती हैं वो एक दूसरे का मुंह देख रही होते हैं कि हैं हाँ जी की कह रहे हो, हाँ जी की कह रहे हो। तो ये एक सैड पार्ट है कि एज ए नेशन वी लव टू ब्लेम अदर्स, हम दूसरों पे डाल देते हैं, अपना नहीं देखते हैं। तो इसमें लीगल इश्यूज आर नॉट रियली द वे टू मूव फॉरवर्ड। सोशल इश्यूज की जब हम बात करते हैं, सोशल मैटर्स को सोशल लेवल पे रिजॉल्व करना चाहिए। उसमें अब जो लिखते हैं डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के लिए, एक पोएट के लिए तो वो एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है, लेकिन वो जिसने एब्सोल्युटली उसके दैट्स वेरी ट्रू, जिसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, टू देम इट इज जस्ट नथिंग। मेरी रिक्वेस्ट होगी ऐसे लोगों से कि अगर आप करना भी चाहते हैं शेयर, मीन आई थिंक दे आर प्रोबेबली डूइंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग अदर्स, दे लाइक समथिंग, तो उसका ये होता है कि जैसे अगर आप कभी कभी मेरी पोस्ट देखें तो मैं लिख देता हूं कि भाई इट केम फ्रॉम दिस। एक एनजीओ है लाहौर में, वो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में बहुत काम करते हैं, एक्रोनिम उनका इक्टार, IKTAR, प्रोफेसर शफकत जिलानी है वो उस पर काम करते हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आती है उनसे, तो मैं जब कभी भी देखता हूं तो मैं उस पर लिख देता हूं उसके टॉप मोस्ट पे कि शेयर्ड बाय इक्टार पाकिस्तान। अब आपने क्रेडिट दे दिया उनको, शेयर मैं नहीं किया उनको, लेकिन साथ मैंने ये नोट भी दे दिया कि ये वहां से मैंने लिया और फॉरवर्ड कर दिया फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। एक अच्छी चीज है, एक स्टूडेंट्स को फायदा होगा, इंटेलेक्चुअल्स को फायदा होगा। तो दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग एक्चुअली इन दिस सोशल मीडिया एनवायरनमेंट, कि जब शेयर कर रहे हैं बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं। आपकी पोइट्री बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत वंडरफुल और हार्ट टचिंग होती है कि बंदे पढ़ने के बाद फिर दिल करता है एक और दफा पढ़ो, फिर 2 दफा पढ़ो, फिर 3 दफा पढ़ो। तो अब डेफिनेटली हमारे लिए तो वी आर एंजॉयिंग, लेकिन जिसने लिखा होता है उसने ही और शी हैज पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट। एग्जैक्टली, रातों को जागना पड़ता है कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल काम के लिए। तो वो मेरी रिक्वेस्ट उन सब से यही होगी कि जिनको ये बहुत अच्छी लगती हैं चीजें, वो काइंडली उनका नाम लिख दें कि टेकन फ्रॉम द फेसबुक पेज और होम पेज ऑफ दिस प्रोफेसर। तो वो इट क्रिएट अ विन विन फॉर एवरीबॉडी बेसिकली। ऑब्जेक्टिव व्हेन वी शेयर बिकॉज इट इज समथिंग गुड एंड अदर मस्ट नो। तो मेरा ख्याल उनको फिर साथ लिख देना चाहिए कि आई हैव टेकन दिस आर्टिकल, दिस पिक्चर, दिस पोएट्री page from this author's page, and the real honor is Professor Khadija. बट सर ये तो आपने एथिकल बात बता दी। हमारे यहाँ जो एथिक्स के साथ किया जा रहा है सलूक, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मतलब मेरा ख्याल है कुछ ऐसा आपने देखा कि जिसने आपको कंपेल किया, मजबूर किया कि भाई किताब ही लिख डालो, कि जिस तरीके से इंफ्रिंजमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। सर फिर इसकी क्या सजा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी, अगर आप कॉपीराइट को करते हैं उसको? एक्चुअली courts has different punishments. It depend on the nature of the case और किस किस्म का है. Mostly it ends up in financial penalties. Okay. I mean, if you look into big companies like Amazon went into a lawsuit against Barnes and Noble because Amazon has one feature on their website, Express Lane. तो वो एक और कंपनी ने उसको कॉपी कर लिया and placed it like that. तो वो फिर ended up in a settlement of 760+ million US dollar. तो big financial penalties हैं. तो पाकिस्तान में चूंकि अभी ये कल्चर नहीं है कि
कोर्ट फाइनेंशियल पेनल्टीज के लिए फोर्स करे और लोग देते भी नहीं हैं, या वो सेटल हो जाती हैं, या वो जिसकी आईपी राइट्स को वायोलेट किया गया होता है, इन्फ्रिंज किया गया होता है, वो भी परसू नहीं करते कोर्ट्स में। तो इस वजह से वो फिर कल्चर एक चलता जाता है, वो कहते हैं कि कुछ चूंकि होता नहीं है तो दैट्स फाइन। अच्छा, एक और इसमें लेट मी शेयर दैट देन कोर्ट वुड आल्सो लुक इनटू द कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ समबॉडीज एक्शन। राइट। कि अगर तो लेट्स से कि किसी ने किसी इंटेलेक्चुअल्स का काम उठाया और उसे पब्लिश कर दिया, और पब्लिश इस तरह किया कि वन हैज टू पे हिम और टू पे हर, मीन इन अदर वर्ड्स समबॉडी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम योर एफर्ट्स फाइनेंशियली, तो उस पे फिर कोर्ट बड़ा सीरियस एक्शन लेती है। लेकिन अगर कोई कमर्शियल गेन नहीं है, किसी ने पैसे नहीं कमाए हैं, तो फिर कोर्ट उसको प्रोबेबली विद टॉलरेट, इग्नोर कर देंगे, वार्निंग पे बात खत्म हो जाएगी। क्या ऑथर जो होता है वही उनको लिख देते हैं, ओरिजिनल ऑथर जो होते हैं वही कह देते हैं कि प्लीज स्टॉप इट, इट्स इन्फ्रिंजिंग माय राइट्स। तो ये उसका होता है। सर जैसे भी आपने कहा कि ऑथर कह देता है और सारा कुछ है, तो सर और तो फिर ये इनका हम सोशल मीडिया का क्या करें कि जो ये तो आपने एथिक्स वाली बात बताई है ना कि भाई लिख दिया करो ये XYZ की है। लेट्स से अगर आपने एक चीज आप अपने कोई मेमोयर्स शेयर कर रहे हैं और कोई वो अपने नाम से कॉपी कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई लॉ आता है फिर? ये देखें, इंटेलेक्चुअल लिटरेरी वर्क पे तो वो सारे कॉपीराइट्स लॉ हैं जो एप्लीकेबल है। अब अगर किसी ने उसको उठा के आपने नाम से लिख दिया है तो इट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, कि आपके राइट्स को वायोलेट किया गया है और लॉ को जो है वायोलेट किया गया है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप है कि व्हाट टू डू। तो नेक्स्ट स्टेप फिर वही है कि टेक देम टू द कोर्ट। राइट। एक तो आईपीओ, अच्छा अब आईपीओ ऑफिस में आप इसलिए नहीं जा सकेंगे कि इफ योर वर्क इज नॉट प्रोटेक्टेड, नॉट रजिस्टर्ड इन द आईपीओ ऑफिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफिस पाकिस्तान, कि अगर उसके कॉपीराइट्स लिए नहीं गए हैं, लॉ स्टिल recognize you as the original owner if you can prove that on this date I started working on this project and I am the actual owner of that. Let's say कि आप कह दें कि 10 साल पहले मैंने बुक लिखनी शुरू की, ये एविडेंसेस हैं सारे, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपकी सपोर्ट में कह दें कि yes, this gentleman has been working on this and he has been sharing white papers with us, तो वो तो प्रूफ हो गया, ठीक है, कि it is your intellectual work। लेकिन अगर कॉपीराइट ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो फिर वो लीगल पार्ट जो था वो उसमें मिसिंग है, तो वो जरूर करवा लेना चाहिए कि वो कॉपीराइट्स है या जो भी वर्क है। बहुत से आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, वो उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं, नहीं उसके लेते जाके। तो वो एक, अब ये उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आर्टिस्ट जो हैं उनको या तो अवेयरनेस नहीं होती है, नंबर 1, नंबर 2, या उन बेचारों के पास पैसे नहीं होते हैं। राइट। कि वो या अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि उनको प्रोसेस का ही पता नहीं है। अब 2000, 3000, 4000 अगर उनको पता हो कि 4000 से आप इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे तो मे बी दे विल गो फॉर इट। तो मैं आपके सारे लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आईपीओ ऑफिस के पाकिस्तान का जो आईपीओ ऑफिस है उसके पेज पे जाएं और सारी एप्लीकेशन के प्रोसेसेस उन्होंने बड़े इजी तरीके से गाइड किए हुए हैं कि हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड, और फीस भी आगे लिखी हुई है कि किस प्रोसेस की कितनी फीस होगी। तो ये 2-3 आवर्स की एफर्ट होती है जो कि आपके काम को प्रोटेक्ट कर लेती है, तो वन मस्ट डू इट। अच्छा सर, अब एक और सवाल है, उसके बाद मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज मुझे पता है आज आप कॉन्फ्रेंसेस में भी बिजी रहे, आपकी जूम की भी मीटिंग्स थी। सर अब ये जो आपकी बुक है, मैं अगेन अपने देखने वालों को बताऊं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन, सर मेरा ये सवाल है कि व्हाट स्पेसिफिक इंडस्ट्री इज द टारगेट ऑडियंस फॉर द फर्स्ट एडिशन? ये किन के लिए जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है? एक्सीलेंट, इट इज प्रोफेसर खदीजा, इट इज फॉर textile industry, right, for software industry, for film industry, for entertainment industry, for manufacturing sector of Pakistan. I mean, गुजरात में आप देखें कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट फर्नीचर बनता है, बिल्कुल। सियालकोट में अपैरल्स, सर्जिकल
اور स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स बनती हैं, उन सब के लिए फैसलाबाद में टेक्सटाइल है, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन वो बनाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन उनको चाहिए। तो अब ये बहुत से तो डिजाइनर जो पाकिस्तान में हैं, ये जो लेडीज के कपड़े बना बना के बेचते हैं, आई हैव अ सीरियस डाउट कि वो उन्होंने अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब क्यों नहीं किया, बात मैंने एक डिजाइनर से पूछा कि वो कि आप अपने ये प्रोटेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। कहते जी एक तो ये किसकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है कि जो डिजाइन लेडीज के गारमेंट्स के हमने इस समर में बना दिए अब वो अगले समर में नहीं चल रहे। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया कि एक्चुअली लेट्स से कि अगर खदीजाज डिजाइनर के क्लोथ्स मार्केट में आएंगे तो वो कहते हैं चलो खदीजा ने तो अपने 2000 सूट बेच ही लिए हैं हाई प्राइस पे, अब उनका नाम जो है वो मार्केट में स्प्रेड हो रहा है, तो वो कहते हैं इस बहाने से हम उन मार्केट्स को भी टैप कर लेते हैं जिनमें हम एक्चुअली नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह हमारा ब्रांड जो है वो एक चल रहा है हर कम्युनिटी में, तो हम सप्लाई करें या ना करें लेकिन उनको एक ब्रांड अवेयरनेस आ रही है लोगों को। वो कहता है कि इफ नॉट एट दिस स्टेज 2 years में 3 years में जब वो इस फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे तो दे आर फॉर श्योर गोना गो फॉर द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो ये उन्होंने मुझे एक डिजाइनर लाहौर में जिनसे मैं मिला उन्होंने मुझे बताया। डॉक्टर साहब ये सारी इंडस्ट्रीज जी, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, अभी आप जो डिजाइनर की बात कर रहे हैं सर, वही चीज हम देखते हैं, बहुत बड़ा डिजाइनर है, उसकी जो डिजाइन किए हुए कपड़े होते हैं, और वही हम जो है एक देखते हैं कि एक वक्त में जो ठेला लगाया हुआ है बंदे ने या जो जमीन पे रख के बैठे, एग्जैक्ट वही रेप्लिका डिजाइन जो है वो हमें उससे आधी से भी आधी कीमत में मिल रहा होता है। तो क्या ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट्स में आएगा? जी एब्सोल्युटली, उनके राइट्स की वायोलेशन हो रही है, ये डिजाइन की इन्फ्रिंजमेंट है जो कि पाकिस्तानी लॉ प्रोटेक्ट करता है उसको। तो इफ दे हैव नॉट रजिस्टर्ड दैट स्पेसिफिक डिजाइन विद आईपीओ ऑफिस तो वो तो फिर तो प्रोटेक्शन नहीं होगी, बट इफ दे हैव डन। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रॉब्लम ये होती है इन्फोर्समेंट की कि आप कैसे इन्फोर्स करें। कि यूएस में तो कभी सोचा भी नहीं था कि एडोबी फोटोशॉप जो है वो $5 की मिल जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरे का पूरा जो है वो ₹500 का या $1000 का मिल जाएगा। तो यहाँ वो सीडीज लेके फिर रहे होते हैं, कोई उनको पूछता नहीं। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ जाती है कि हाउ टू इन्फोर्स, लॉज आर देयर, इन्फोर्समेंट इज नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली। अब इन्फोर्समेंट आप कैसे करेंगे? अगर तो आपको पता हो कि 1 या 2 या 3 या 5 या 10 क्रिमिनल हैं एक सिटी में, तो आप 20 पुलिस ऑफिसर्स लगा देंगे उस ड्यूटी पे। लेकिन जब आपको पता हो कि हर बंदा ही ये पायरेटेड चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, तो देयर इज नो वे यू कैन डू दैट। अब इसके इन्फोर्समेंट एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि मार्केट में आप ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उन बिग मैसेस के लिए जो कि एक टारगेट मार्केट है। इन रियलिटी तो चाहिए किसी लोकल एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए कि यार सिर्फ 5% या 10% है जो कि ओरिजिनल डिजाइनर के क्लोथ ले रहे हैं, और 80% to 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनकी प्राइसिंग रेंज जो है वो 2000, 3000, 4000 तक है एक अच्छे डिजाइन को लेने के लिए। अब किसी डिजाइनर को चाहिए कि उस मार्केट को टैप करे, बजाय इसके कि वो एक छोटा सा सेगमेंट जो है 10% उसी को compete करते जाएं, उसी में रह गए। वन नीड टू लुक इनटू इट कि वो एक बिग मार्केट है। देखें आप लुक इनटू द यूएस मार्केट कि बहुत इलीट क्लास जो है उनके लिए टिफनीज है, उनके लिए नॉर्डस्ट्रॉम है, उनके लिए मेसीज है। जो जरा छोटे लेवल पे आ जाते हैं उनके लिए वॉलमार्ट है, और इस तरह हर एक के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। और पीपल गो एंड बाय रिस्पेक्टफुली विद फुल डिग्निटी फ्रॉम द स्टोर दे वांट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ चूंकि वो सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो लोग जो है वो फिर बैकडोर चैनल जो है, क्रिमिनल पर्टिकुलरली, ये कोई वो डिसेंट लोग नहीं होते जो किसी के डिजाइन को कॉपी करते हैं, किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को कॉपी करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन दैट। मीन दे आर क्रिमिनल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली एज ए नेशन, एज ए इंटेलेक्चुअल, दैट प्रोवाइड something that fit into the range of those communities, then things will get better.
Inshallah. This is what I would say. Sure. Thank you so very much, डॉक्टर साहब. It was such a wonderful discussion. मैंने बहुत सीखा, मेरे काफी सारे questions थे. आपकी किताब को मैंने कोई 2-3 बार जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ा, और फिर मैंने कहा कि अब मैं सवाल कर सकती हूँ, क्योंकि जो सवालात बुलबुला रहे थे मेरे जहन में, तो मैंने कहा कि अब तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और you have done a great job, you are still doing a great job, और इंशाल्लाह दिल से दुआ है कि हम आपकी ऐसी और भी बुक्स देखें कि जो हमारी नेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो. Yeah, so Professor Khadija, this book is available. There is a company in Lahore called Allied Book Company. They are on Mall Road. So they are the distributor of this book at the moment. So at their website, it is there. So by going at their website, their phone number is there. So they can collect cash on delivery. So that's another option that people can buy this book from Allied Book Center, Book Company, Lahore. So great. Once again, thank you. I appreciate your time. Thank you so much for giving me the chance to be your guest today. Thank you so much, sir. Thank you. Salamat rahe, shad rahe, abad rahe. Allah Hafiz.